Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 15 of the course of EDC. In today's lecture, we are going to continue with BJTs, and particularly we will be studying the large signal equivalent model of the BJTs. Let's begin. First of all, we should try to see what is meant by large signal equivalent model. Please observe that by large signal equivalent model we mean that we are going to apply DC signal or we are talking about the DC signal. In case of small signal model, we apply small sized or small amplitude AC signal on the BJT or on the MOSFET and try to observe its behavior. In case of the large signal equivalent model, we either apply DC or large value of the AC signal to see the behavior of BJT. First of all, it should be clear to all of us that the equations of IC, IB and IE that we have studied, which includes the formulas like IC equal to alpha IE, IC equal to beta IB, all these formulas have been derived using the large signal equivalent model. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडल्स बनाए गए हैं, ठीक है। बीजेटी को जब लोगों ने बनाया, स्टडी किया, तो उसका बिहेवियर एक तो प्रैक्टिकली देख रहे होंगे कि भाई ऐसा बिहेव कर रहा है, कितना वोल्टेज दे रहे हैं तो ऐसा बिहेव कर रहा है, इतना करंट दे रहे हैं तो ऐसा बिहेव कर रहा है। एक चीज़ होगी उसकी कॉपी पेंसिल पर एनालिसिस। तो कॉपी पेंसिल पर बीजेटी का जो बेस एमिटर जंक्शन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, और कॉपी पेंसिल पर ये बनाकर देखना है कि बीजेटी का कलेक्टर बेस जंक्शन ये कैसे बिहेव कर रहा है। This is actually called as the large signal behavior model या large signal equivalent model, where we try to observe that how the BJT will be behaving in any specific scenario. और ये सारी चीज़ें हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकें, ये हम मॉडल की मदद से प्रिडिक्ट कर सकें कि भाई अगर BJT पे इतना हम वोल्टेज देंगे तो ये इस तरह से बिहेव करेगा बेस्ड ऑन द मॉडल दैट इज being created. Before we actually start looking into how this model looks, first of all let us see a few things. सबसे पहले the first thing that we should know is that the voltage VBE is the voltage on which the collector current depends. This is something strange. आपको याद होगा कि that VBE was the supply on the base emitter side and collector VCB was the supply on the collector and base side. However, this equation clearly suggests that collector current IC is dependent on VBE. How? Please note that if you can recall, we studied that collector base junction should be reverse biased, ठीक है, during an active region of operation. VBE that was that voltage which was creating a forward bias between emitter and base, and it was this voltage which was what should I say, which was actually creating flow of electrons from emitter to the base. क्योंकि VBE ही वो वोल्टेज था जिसकी वजह से या जिसके मैग्नीट्यूड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिटर से एमिट होंगे और बेस की तरफ जाएंगे। अच्छा, VBE का तो ये काम हो गया कि वो करंट बेसिकली ओरिजिनेट करा रहा है एमिटर से। एट द सेम टाइम कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइज है। देखिए VBE जब ऑन होता है तो हमें पता होता है कि VBE की वैल्यू है वो 0.7 वोल्ट होगी, ठीक है। लेकिन कलेक्टर और बेस का जंक्शन जो रिवर्स बाइज है ये कितने वोल्टेज से रिवर्स बाइज है, 0.1 वोल्ट से रिवर्स बाइज है या 5 वोल्ट से रिवर्स बाइज है, हमें ये बात नहीं पता, ठीक है। तो कहने का मकसद है द ओनली थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन इज अ रिवर्स बाइस बिटवीन कलेक्टर एंड बेस के VC की वैल्यू VB से बड़ी हो। वो कितनी बड़ी हो ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, बस ये कहा गया कि VC VB से अगर बड़ा होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होगा तो एक्टिव रीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। VC को कितना बड़ा होना है VB से, इस बात को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि वी आर पर्टिकुलरली नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ VCB। और दूसरी बात ये कि हमें कलेक्टर और बेस जंक्शन पे सिर्फ एक रिवर्स बाइस चाहिए जो कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि आके बेस के अंदर मौजूद हो जाते हैं फ्रॉम द एमिटर, उनको एक पुशिंग फोर्स मिल जाए, हमें बस ये चाहिए था, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि
कलेक्टर का जो करंट है वो हरगिज़ इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि कलेक्टर और बेस का वोल्टेज क्या है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर के करंट का मैग्नीट्यूड बेसिकली सेट हो रहा होगा वीबीई की वैल्यू के ऊपर। जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस रीजन में पहुंच जाएंगे और बेस में मौजूद रहेंगे विदाउट रिकॉम्बिनेशन, यानी कि उनके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत होगी, वो सारे के सारे कलेक्टर करंट कंस्टिट्यूट कर लेंगे। एमिटर से चले हुए वो इलेक्ट्रॉन जो बेस तक पहुंचे, वहाँ लॉस्ट नहीं हुए बल्कि आगे मूव हो गए, वो कलेक्टर करंट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कलेक्टर वोल्टेज का कहीं पर अमल दखल नहीं था, बल्कि एमिटर और बेस वोल्टेज का अमल दखल था कि एमिटर से वो इलेक्ट्रॉन्स को चला रहा था, आगे मूव करवा रहा था। बेस में अगर वो लॉस नहीं होते तो वो अल्टीमेटली आगे जाके कलेक्टर करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। दिस मीन्स दैट कलेक्टर वोल्टेज इज नो वे इन्वॉल्व। इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ ये है कि पुशिंग फोर्स दे, बेस में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं उनको पुशिंग फोर्स दे के आगे मूव कर जाएं। दैट्स इट, कलेक्टर टू बेस। तो उस लिहाज से ये इक्वेशन हमें यही चीज़ बता रही है कि जो कलेक्टर करंट होगा वो वीबीई वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा, वीबीसी वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होगा, पहली बात। अच्छा, इसमें एक आई एस है। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा डायोड इक्वेशन से मतलब मिलाने की कोशिश करें, आपको याद होगा कि आई डी इक्वल टू आई एस ई रेज़ टू द पावर वी डी ओवर वी टी। डायोड की करंट इक्वेशन भी ऐसी ही होती थी, ठीक है। तो डायोड की करंट इक्वेशन जो है वो बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी। वो ये बताती थी कि अप्लाइड वोल्टेज और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे से एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही रिलेशन ये बता रहे हैं कि वीबीई वोल्टेज और करंट आईसी के अंदर एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा। ज़ाहिर है ई का टर्म मौजूद है और ये इक्वेशन समहाउ डायोड रिलेशन को रिजेंबल करती है, यानी कि आईसी और वीबीई का ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल नेचर का बनेगा। अच्छा, आई एस क्या है? आई एस जो है वो एक स्केल करंट है, डिवाइस का कांस्टेंट करंट है, जो बेसिकली अगर आप इस एक्सप्रेशन को नोट करें तो डिपेंड करता है कुछ ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं या फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द एमिटर रीजन, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स कितनी तेज़ी से डिफ्यूज़ हो रहे हैं, ये डिफ्यूजन कांस्टेंट है। एन आई आपको पता है द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन को इंडिकेट कर रहा है। एन ए इंडिकेट्स द डोपिंग ऑफ द पी मटेरियल एंड डब्ल्यू ऑल्सो शोज द विड्थ ऑफ द एमिटर रीजन। तो आई एस इज एक्चुअली अ कांस्टेंट पैरामीटर विच इज डिपेंडेंट ऑन ऑल कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ द बीजेटी। तो आई सी कांस्टेंट टाइम्स ई रेज़ टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी के बराबर है। अच्छा, अगर आई सी की एक्सप्रेशन ये है तो हमें पता है कि आई सी जो है वो अल्फा टाइम्स आई ई के बराबर होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ आई ई बराबर होगा आई सी ओवर अल्फा के? तो उस लिहाज से अगर मैं आई सी की एक्सप्रेशन पुट कर दूँ आई एस ई रेज़ टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी, तो आई ई क्या हो जाएगा? आई सी ओवर अल्फा है तो पूरा आई सी की वैल्यू डिवाइड बाय अल्फा। हमें ये भी पता है कि आई सी बीटा आई बी के बराबर है, तो आई बी क्या निकल जाएगा? आई सी ओवर बीटा निकल जाएगा। तो आई सी ओवर बीटा के लिए मैंने ऊपर आई सी की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाय बीटा कर दिया। नाउ प्लीज नोट कि कलेक्टर करंट के अंदर जो स्केल करंट है उसका नाम है आई एस, लेकिन एमिटर करंट के अंदर जो स्केल करंट है वो आई एस नहीं है बल्कि वो आई एस डिवाइड बाय अल्फा है। इसी तरह बेस करंट के अंदर जो स्केल करंट है वो आई एस नहीं है, उसकी वैल्यू आई एस ओवर बीटा है। तो एमिटर करंट के स्केल करंट को आई एस ई का नाम दिया जाएगा। अभी आगे जाके चीज़ें यूज होंगी, जहाँ कहीं भी मुझे एमिटर करंट के स्केल करंट का जिक्र करना होगा वो किसके बराबर होगा? आई एस ओवर अल्फा के बराबर होगा। और मैं उस आई एस के सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ई लिख दूंगी। इसका मतलब है मैं स्केल करंट ऑफ एमिटर की बात कर रही हूँ। अगर मैं स्केल करंट ऑफ बी आई बी की बात करूंगी, बेस के स्केल करंट की बात करूंगी, तो वो किसके बराबर होगा? वो आई एस ओवर बीटा के बराबर होगा। और मैं उसमें आई एस के साथ सबस्क्रिप्ट में बी का वर्ड यूज कर दूंगी ताकि पता चल जाए कि मैं बेस के जो है वो स्केल करंट की बात कर रही हूँ। सिमिलरली कलेक्टर करंट का स्केल करंट क्या है? वो सिर्फ आई एस है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली ये बता रही होंगी कि ये कलेक्टर का जो है वो स्केल करंट है, तो मैं आई एस सी उसके साथ लिख दूंगी, जिससे पता चल जाएगा कि ये कलेक्टर करंट के स्केल करंट की बात हो रही है। ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं
जो बेसिकली अभी लार्ज सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल में आगे जाकर यूज होंगे। देखा जाए तो ये चीज़ें, दिस टॉपिक इज़ नॉट दैट टिपिकल, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। देर आर टू मेथड्स ऑफ representing the large signal model. This is the method which is the format 1. Please try to observe and locate the base region, the collector region and the emitter region. सबसे पहले देखें base region ये नज़र आ रहा है, कलेक्टर रीजन ये नज़र आ रहा है, एमिटर रीजन ये नज़र आ रहा है। इसी तरह से बेस यहाँ है, एमिटर यहाँ है, कलेक्टर यहाँ है। यकीनन बेस ब्रांच में जो करंट होगा उसको IB कहेंगे, कलेक्टर के करंट को IC कहेंगे, एमिटर ब्रांच के करंट को IE कहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही है, IB, IC और IE रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, मैंने फॉर रेफरेंस पर्पजेस जो पिछले वाले स्लाइड में इक्वेशंस थी, मैंने उसको रेफरेंस के तौर पर यहाँ ले लिया है ताकि हमें देखने में आसानी हो। सबसे पहली बात ये कि फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 का वर्ड क्यों यूज़ किया है। फॉर्मेट 1 के अंदर किया हुआ क्या है कि बेस और एमिटर, अच्छा सबसे पहली बात कि ये लार्ज सिग्नल मॉडल जो बना है दिस इज़ फॉर एक्टिव रीजन, ठीक है। इस वाले मॉडल के अंदर बेस और एमिटर के दरमियान जो डायोड है वो ऑन है, VBE आपको पता है एक्टिव में ऑन होता है। तो इस मॉडल के अंदर बेस और एमिटर के दरमियान का डायोड ऑन था, ना कि बेस का ऑन था ना कि एमिटर का ऑन था। इस मॉडल में क्या किया गया है कि बेस और एमिटर के दरमियान जो डायोड ऑन है उसको डायोड की फॉर्म में एमिटर टर्मिनल पे शो किया गया है, दोनों में। ये फॉर्मेट 1 की ही दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। अगले स्टेप में क्या किया जा सकता है, फॉर्मेट 2 क्या होगा कि बेस और एमिटर के दरमियान जो डायोड बन रहा है जो कि ऑन हो जाता है ड्यूरिंग द एक्टिव रीजन, उसको बेस पे शो किया होगा, एमिटर को खाली रखा होगा। ये रिप्रेजेंटेशन का कौन सा तरीका है कि बेस और एमिटर के दरमियान जो डायोड बन रहा था VBE 0.7, इसको एमिटर पे शो किया गया है बेस को खाली रख के। अगली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, बेस और एमिटर का डायोड जो है वो बेस पे जो है उसके डायोड को बनाया गया होगा और एमिटर पे उसको एमिटर टर्मिनल को खाली रखा गया होगा। सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो फॉर्मेट 2 की होगी उसमें ये होगा। अच्छा, कलेक्टर पे आ जाइए। कलेक्टर के अंदर आपको पता है कि कलेक्टर का जो करंट है वो बेसिकली कलेक्टर और बेस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द बेस टू एमिटर वोल्टेज। तो यहाँ बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि कलेक्टर के अंदर जो करंट है IC, ये IC की ही इक्वेशन है, अभी प्रीवियस पेज पे आपने पढ़ी है कि IC बराबर होता है IS e⁻⁴ VBE ओवर VT। जब आपके पास एक्टिव रीजन होता है तो कलेक्टर की तरफ से जो करंट बेस और एमिटर की जानिब आ रहा होता है वो एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होता है, और वो करंट सोर्स डिपेंडेंट करंट सोर्स होती है। किस पे, VBE की वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है। तो पता क्या चला कि जब एक्टिव रीजन होता है तो बेस एमिटर जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइज होता है, उसके डायोड को एमिटर पे शो कर दिया है इस वक्त बेस को खाली रख के। कलेक्टर पे एक करंट फ्लो करने लगता है। वो कैसे कलेक्टर पे करंट फ्लो करता है, कलेक्टर पे जो करंट है वो डिपेंडेंट है वोल्टेज VBE पे, जब ये कि यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स को दिखा दिया गया है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है IC इक्वल टू IS e⁻⁴ VBE ओवर VT बेसिकली कलेक्टर करंट की इक्वेशन है। अब आप दरअसल यहाँ देख सकते हैं कि एमिटर करंट जो आपका था, एमिटर करंट ये है, एमिटर करंट में जो वो है आपका स्केल करंट है, वो स्केल करंट किसके बराबर है, IS ओवर अल्फा के बराबर है। तो चूंकि ये एमिटर वाली ब्रांच है, बता सिर्फ ये रहे हैं कि एमिटर करंट में जो स्केल करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, IS ओवर अल्फा होगी, और इसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया कर दिया गया है, स्केल करंट ऑफ द एमिटर। यानी एमिटर ब्रांच में जो स्केल करंट होगा वो क्या होगा, IS ओवर अल्फा करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा। इसी मॉडल की दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग IC एज IS e⁻⁴ VB ओवर VT, हम IC को अल्फा IE भी लिख सकते हैं, ज़ाहिर इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। दूसरा, बाकी सब कुछ जो है वो बेसिकली एज इट इज़ है। DE क्या बता रहा है कि बेस और एमिटर जंक्शन, DE यहाँ पर भी इसका नाम DE ही है,
ये डायोड दोनों जगह पर ये बता रहा है कि बेस एमिटर जंक्शन जो फॉरवर्ड वाइज है उसके डायोड को इस वक्त एमिटर टर्मिनल पे रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी इसमें और इन दोनों रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं है, सवाई ये कि यहाँ पे आई एस ई टू द पावर वी बी ओवर वी टी के फॉर्म में बात की है, यहाँ अल्फा आई ई के फॉर्म में बात की है। ये सिंपली छोटे छोटे से आपके पास कह लें डायग्राम्स हैं जिनकी हल्की फुल्की सी एक्सप्लेनेशन और रेलेवेंट क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मेट नंबर 2 पे आते हैं और प्लीज़ नोट के लार्ज सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, ये जो फॉर्मेट 2 आप स्टडी कर रहे हैं, दिस इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिव मोड ऑफ द बीजेटी। इसको भी आप नोट करें, इसमें देखिए इसमें बेस टर्मिनल है, एमिटर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है, इसमें भी 3 ही टर्मिनल है और ये फॉर्मेट 2 की ही 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है कि वो वोल्टेज ड्रॉप VBE का जो कि बेस और एमिटर के दरमियान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 0.7 की वैल्यू हो जाती है व्हेन द बेस एमिटर जंक्शन टर्न्स ऑन, इसमें उस डायोड के ड्रॉप को एमिटर पे नहीं बल्कि बेस पे दिखाया गया और एमिटर को खाली दिखाया गया। बिल्कुल यहाँ पे भी यही चीज़ है कि एमिटर को खाली रख के बेस पर दिखाया गया। इस मॉडल में भी क्या किया गया है, ये दिखाया गया है कि बेस एमिटर के दरमियान जो डायोड है उसका नाम VBE है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज VBE बन रहा होगा, कलेक्टर का करंट उस VBE वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा। ये एक्सपोनेंशियली नज़र भी आ रहा है, इसीलिए कलेक्टर से एमिटर आने वाले करंट को एक डिपेंडेंट करंट सोर्स की तरफ से दिखाया गया है। ठीक है, इसी कलेक्टर के करंट को IS e रेज़ टू द पावर VBE ओवर VT के बजाय हम बीटा IV भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी IC को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन भी IC को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो चाहे मैं डिपेंडेंट करंट सोर्स के ऊपर ये चीज़ लिखूँ या डिपेंडेंट करंट सोर्स पे बीटा IV लिखूँ, इट इज़ एक्चुअली द सेम थिंग, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टर करंट। एक चीज़ जो इस मॉडल में यहाँ पर लिखी गई है वो ये कि इस वाले डायोड के अंदर से जो कि बेस पे लगा हुआ है, जो करंट गुजर रहा होगा वो IB करंट होगा बिल्कुल, लेकिन इस डायोड से कौन सा स्केल करंट गुजर रहा होगा, तो यकीनन बेस का ही स्केल करंट गुजर रहा होगा क्योंकि ये बेस पे कनेक्टेड है। तो बेस करंट का स्केल करंट क्या होता है, वो IS नहीं होता, वो IS ओवर बीटा होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। इस ब्रांच में से जो करंट गुजरेगा वो यकीनन बेस करंट होगा टोटल, और इस बेस करंट के अंदर स्केल करंट क्या होगा, वो होगा IS ओवर बीटा, वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस IS करंट के साथ B का सब्सक्रिप्ट इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि ये बेस के स्केल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू है IS ओवर बीटा। सो दीज आर द 2 रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द लार्ज सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल फॉर द डायोड फॉर द BJT इन एक्टिव रीजन। नाउ लेट अस सी what we have further. In this slide, now we are going to study about the operation of BJT in saturation region. Achha, first of all, please look at this diagram. This is the diagram for active region where the emitter base junction is on forward biased and the collector base junction is off reverse biased. One thing that we all already know for sure is that during the active region, the collector base junction remains off. And how does it remain off? We have VC greater than VB. जब कलेक्टर का वोल्टेज बेस के वोल्टेज से बड़ा हो तो कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ होता है। अच्छा, हम अब देखना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि आया कलेक्टर और बेस के VC ग्रेटर देन VB के अलावा ऐसे कौन कौन से वोल्टेजेस हो सकते हैं कि कलेक्टर और बेस जंक्शन जो है वो ऑफ हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम हमेशा ये समझते आ रहे थे कि सिर्फ कलेक्टर का वोल्टेज जब कभी भी बेस वोल्टेज से बड़ा होगा तो एक्टिव रीजन होगा। ऐसा नहीं होता, इस VC ग्रेटर देन VB के अलावा भी ऐसे कुछ वोल्टेजेस मुझे नज़र आएंगे कि जिस पे VC VB से शायद बड़ा नहीं होगा लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ होगा और उस पे एक्टिव रीजन एग्जिस्ट करता होगा। So we are actually starting with the active region. हम एक्टिव रीजन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि आया वो कौन सा स्विचिंग पॉइंट होगा जहाँ जाकर एक्टिव रीजन ख़त्म होगा और सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू पे डिपेंड करते हुए बता रहे होंगे, ये हम लोग कलेक्टर और बेस की वैल्यू पे डिपेंडेंट करते हुए बताएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि VC जब भी VB से बड़ा होता है एक्टिव रीजन होता है। ओके, अब आप देखें, अगर मैं
कहूँ कि VCB ज़ीरो है, VCB ज़ीरो होने का क्या मतलब है? VCB ज़ीरो होने का मतलब है, अब मैं ज़ाहिर है इस सप्लाई वोल्टेज की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो मैंने एक्टिव के लिए दिखाई थी। मैं कह रही हूँ VCB ज़ीरो है। VCB ज़ीरो मीन्स द वॉट एवर इज द कलेक्टर वोल्टेज इज द बेस वोल्टेज। अगर कलेक्टर और बेस का वोल्टेज मैं सेम कर दूँ तो क्या होगा भाई? ये जंक्शन ऑन तो नहीं होगा ना तब भी। कलेक्टर बेस VC VB पे रिवर्स बाइस था, फाइन, लेकिन क्या VC और VB का वोल्टेज दोनों का बराबर कर देने से ये जंक्शन ऑन हो जाएगा? नो अगर ये जंक्शन ऑन नहीं है तो ये जंक्शन अभी भी रिवर्स बाइस या ऑफ ही कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ VC ग्रेटर देन VB पे कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ था, रिवर्स बाइस था, बल्कि जब VC और VB के वोल्टेजेस को बराबर कर दिया जाएगा तब भी ये जंक्शन जो है वो ऑफ ही रहेगा, रिवर्स बाइस रहेगा इन अदर वर्ड्स। क्योंकि अगर ऑन नहीं है इट मीन्स इट इज़ ऑफ है तो रिवर्स बाइसिंग में ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई फॉरवर्ड करंट नहीं गुजर रहा। ऑफ हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ऑफ हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि व्हेन देयर इज नो फॉरवर्ड बाइसिंग करंट गोइंग थ्रू द डायोड इट मीन्स कि ये ऑफ है या रिवर्स बाइस है, हम इससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो VC ग्रेटर देन VB पे भी डायोड से फॉरवर्ड बाइस करंट नहीं गुजर रहा था इस वाले जंक्शन से, और VC और VB जब बराबर है तो भी कलेक्टर और बेस वाले जंक्शन से कोई फॉरवर्ड बाइस वाला करंट नहीं गुजर रहा था। इसका मतलब है ये दोनों सिचुएशंस हमारे पास इंडिकेट कर रही हैं कि आपका जो डायोड है वो कलेक्टर बेस वाला ऑफ ही है या रिवर्स बाइस ही है। अच्छा, मजीद आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये देखें कि यहाँ पे VC VB से बड़ा है, यहाँ पे VC VB के बराबर है। अगले स्टेप में मैं VC को VB से कम कर रही हूँ, यानी कि अब मैं VC VB से कम कर रही हूँ। अगर मैं VC को VB से कम कर रही हूँ तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि VCB अगर पॉजिटिव है, लेट अस सी दिस एग्जांपल, इसको पहले देखते हैं और इस ग्राफ को भी साथ में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं VCB, मैं इस VCB की बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास VCB की वैल्यू -0.4 है, मैं इसको एक्सपेंड करके लिख सकती हूँ VC माइनस VB इक्वल टू 0.4। मैंने इस साइड में से, लेफ्ट साइड में से माइनस कॉमन निकाल लिया। VC को प्लस लाने के लिए माइनस VC अंदर लिखा, VB को माइनस लाने के लिए प्लस में लिखा, तो ये माइनस इस तरह आ गया। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से हो गया कैंसिल, -0.4 वाले से। तो अब मेरे पास क्या बच रहा है? VBC 0.4 बच रहा है। इससे मुझे पता क्या चल रहा है? इससे मुझे पता चल रहा है कि VCB का -0.4 एक्चुअली में VBC का 0.4 वोल्ट है। ठीक है, तो अब आप जरा इस ग्राफ को देखें। ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ में ये ग्राफ जो है वो y एक्सिस के ऊपर आपको करंट दिखा रहा है, y और x एक्सिस के ऊपर आपको कलेक्टर और बेस का वोल्टेज दिखा रहा है। यहाँ पर VCB पॉजिटिव है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे VCB नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव जहाँ जहाँ पे VCB है वो ये बता रहा है कि कलेक्टर का वोल्टेज बेस के वोल्टेज से बड़ा है, और नेगेटिव जहाँ जहाँ पे VCB है इसका मतलब है कि कलेक्टर का वोल्टेज बेस वोल्टेज से कम है, जो कि ये सिचुएशन है, ये वाली। नेगेटिव VCB क्या दिखा रहा है कि इस रीजन के अंदर VC इज लेस देन VB, जब भी तो VCB की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जो कि जैसे कि ये। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी जगह पे VCB की वैल्यू नेगेटिव है तो वहां पे उसी जगह पे VBC की वैल्यू पॉजिटिव होगी? दैट इज द सेम थिंग। मैं यहाँ VCB नेगेटिव इस साइड पे, लेकिन मैं VCB नेगेटिव बोलने के बजाय क्या कह सकती हूँ कि यहाँ VBC प्लस होगा। ये इस इक्वेशन से मैंने यही प्रूव करने की कोशिश की है कि VCB की नेगेटिव वैल्यू VBC की पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होती है, पहली चीज़। अच्छा, यहाँ पर जब कभी भी कलेक्टर का वोल्टेज बेस वोल्टेज से बड़ा होता है तो एक्टिव रीजन होता है। ठीक है, पता चल गया हमें, हमने ये यहाँ पे अभी यही चीज़ देखी थी। जब कलेक्टर और बेस का वोल्टेज बराबर होता है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे VC और VB जो है वो बराबर होंगे। जब कलेक्टर और बेस का वोल्टेज सेम होंगे
तो इसका मतलब है ये वाली सिचुएशन आ गई, पॉइंट नंबर 2। उस वक्त भी कलेक्टर बेस जंक्शन ऑन है, मोड आपका एक्टिव ही चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम VCB की वैल्यू को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएं। बेसिकली जो मैं VCB को इस डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, यहाँ पे अगर ये -0.4 है तो ये तकरीबन इस जगह पे कहीं पे -0.3 होगा, यहाँ कहीं पे -0.2 होगा, यहाँ कहीं पे -0.1 होगा और यहाँ पे ये 0 होगा। मतलब यहाँ पे 0 है, -1, -0.2, -0.3, -0.4 यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो -0.1 है दरअसल VBC -0.1 तो VCB है, क्या मैं कह सकती हूँ बेस से कलेक्टर का वोल्टेज यहाँ पे 0.1 प्लस में होगा, VBC यहाँ पे +0.2 होगा, VBC यहाँ पे +0.3 होगा, VBC यहाँ पे +0.4 होगा, ये इसमें कह सकती हूँ, ठीक है। और VBC का +1 +0.1 +0.2 होने का मतलब क्या है, इस सर्किट पे आके देखते हैं। VBC के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? VBC के पॉजिटिव होने का मतलब ये है, जब मैं VBC कह रही हूँ तो इट मीन्स दैट द बेस वोल्टेज इज हायर एंड द कलेक्टर वोल्टेज इज लोअर, क्योंकि VBC कह रही हूँ। तो ये तो जो डायग्राम बनी हुई है वो एक्टिव के लिए बनी हुई है। VBC का क्या मतलब है कि P का वोल्टेज, अब मैं सप्लाई वोल्टेज चेंज कर रही हूँ, मैं सैचुरेशन की तरफ जा रही हूँ, मैं इस जंक्शन को भी VBC को ऑन कराने की बात कर रही हूँ कि P पर हायर वोल्टेज है, ठीक है, और N के ऊपर लोअर वोल्टेज है। हम अब इसको सैचुरेशन की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। P पे हायर वोल्टेज, N पे लोअर वोल्टेज, और मैं कह रही हूँ कि वो VBC 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है। बेसिकली हम इन सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, VBC। अब एक चीज़ कि जब मैं बेस और कलेक्टर के दरमियान फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ, VBC मैं कह रही हूँ 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, मैं फॉरवर्ड बाइजिंग की बात कर रही हूँ बेसिकली बेस और कलेक्टर जंक्शन के। तो क्या मैं बेस और ये सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल है, क्या मैं कह सकती हूँ कि VBC को यानी बेस वोल्टेज को कलेक्टर वोल्टेज से सिर्फ 0.1 वोल्ट पे रख दूँ तो ये जंक्शन ऑन हो जाएगा? क्या ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा? नहीं होगा। इट शुड बी अराउंड 0.7 वोल्ट, तब जाके ऑन होगा ना। मैं इसी तरह VBC यानी कि बेस के वोल्टेज को कलेक्टर वोल्टेज से 0.2 वोल्ट का रख दूँ VBC, तो क्या ये बेस कलेक्टर जंक्शन ऑन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसको तकरीबन 0.7 वोल्ट चाहिए। इसी तरह मैं बेस वोल्टेज को कलेक्टर वोल्टेज के मुकाबले में यहाँ वाला 0.3 वोल्ट रख दूँ तो क्या ये ऑन हो जाएगा? नहीं, ये ऑन नहीं होगा। तो अब तक मुझे क्या पता चला, एक और वोल्टेज को भी रख लेते हैं। बेस वोल्टेज को कलेक्टर वोल्टेज के मुकाबले में 0.4 रख दूं, यानी VBC की वैल्यू अब मैं रख दूं 0.4 वोल्ट प्लस 0.4 वोल्ट, तो क्या ये ऑन हो जाएगा? ये तब भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन 0.4 वोल्ट वोल्टेज जो है VBC प्लस 0.4 इज नॉट सफिशिएंट टू टर्न ऑन एनी सिलिकॉन बेस्ड डायोड। पता क्या चला? पता ये चला कि जिस वक्त VBC की वैल्यू +0.1 है, +0.2 है, +0.3 है, +0.4 है, इन तमाम वोल्टेजेस के ऊपर एक सिलिकॉन डायोड ऑन नहीं होता। VBC को ऑन होने के लिए अब अगर मैं कहूँ कि हाँ 0.5 वोल्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ तो शायद ये जंक्शन आहिस्ता आहिस्ता ऑन होना शुरू हो जाएगा। 0.6 अप्लाई करूँगी VBC को और ऑन हो चुका होगा, और 0.7 वोल्ट के ऊपर ये मेरा VBC कलेक्टर बेस्ड जो डायोड है वो फुल्ली ऑन हो चुका होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब क्या मैं कह सकती हूँ कि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जब तक रिवर्स कलेक्टर वोल्टेज जब भी बेस वोल्टेज से बड़ा था डायोड तब ऑफ था, कलेक्टर वोल्टेज जब बेस वोल्टेज के बराबर था डायोड तब भी ऑफ था, बेस कलेक्टर वाला। और जब मैंने कलेक्टर और बेस वोल्टेज को VBC को 0.4 वोल्ट तक रखा, VBC 0.4 वोल्ट तक रखा, तब भी ये डायोड ऑफ था।
VBC 0.4 रखा तब भी डायोड ऑफ था। तो VBC 0.4 रखने का मतलब क्या है, VCB माइनस 0.4, यानी कि VCB माइनस 0.4 तक भी अगर गिर जाए कलेक्टर और बेस का वोल्टेज VCB, अब मैं उल्टे टर्म्स में बात कर रही हूँ कि जब मैंने कहा कि बेस टू कलेक्टर का फॉरवर्ड वोल्टेज अगर +4 है तो इसका उल्टा करके लिखूँ VCB माइनस 0.4 -0.4 वोल्ट तक ये डायोड आपका ऑन नहीं होगा। अब अगर मैं और चली जाऊं कम वोल्टेज पे कि VCB को -0.5 करूं तो ऑन हो जाएगा, -0.6 पे और ऑन हो चुका होगा, -0.7 के ऊपर फुल्ली ये ऑन हो चुका होगा। तो पता ये चल रहा है कि नॉट ओनली VC ग्रेटर देन VB, बल्कि जब VCB की वैल्यू -0.4 तक आ जाएगी, उस वक्त तक ये डायोड आपका जो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में नहीं आया होगा बेस और कलेक्टर जंक्शन का, और एक्टिव रीजन चल रहा होगा। -0.4 वोल्ट से जब कम होना शुरू होगा वोल्टेज, -0.5 होना शुरू होगा, -0.6 होना शुरू होगा, -0.7 जब होना शुरू होगा, तो उस वक्त जो है वो बेसिकली सैचुरेशन रीजन स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये बेस और कलेक्टर का जो डायोड है वो ऑन होना शुरू हो गया होगा। यही चीज़ हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि ना सिर्फ VC ग्रेटर देन VB, बल्कि VC इक्वल टू VB और VC B इक्वल टू -0.4 वोल्ट तक ये वाला जो डायोड है वो ऑन नहीं हुआ होगा। VCB -0.4 का मतलब है VBC +0.4 वोल्ट तक ये डायोड ऑन नहीं हुआ होगा। हाँ, अब अगर VCB -0.5 हो जाता है, VCB -0.6 हो जाता है, -0.7 हो जाता है, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। या आसान अल्फाज में बेस कलेक्टर का वोल्टेज +0.5 दे दूं, बेस कलेक्टर का वोल्टेज +0.6 दे दूं, बेस कलेक्टर का वोल्टेज +0.7 दे दूं, तो ये डायोड आहिस्ता आहिस्ता ऑन होकर सैचुरेशन की जानिब जा रहा होगा और कलेक्टर करंट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जीरो की तरफ जा रहा होगा। तो अब हमें पता चल गया कि 3 वोल्टेजेस ऐसे हैं, VC ग्रेटर देन VB, VCB इक्वल टू 0 और VBC इक्वल टू 0.4, यहाँ तक के, या VCB -0.4, यहाँ तक के पूरा का पूरा जो है वो आपका एक्टिव रीजन मेंटेन रखता है कोई भी BJT। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर अब हम देखेंगे ये कि जो सैचुरेशन में अगर कोई BJT जो है वो वर्क करता है तो होता क्या है। सैचुरेशन रीजन में हमें पता है कि एक्टिव में IC जो है वो VBE से इंडिपेंडेंट होता है, ये तो एक्टिव की इक्वेशन है, हमें पता है, ठीक है। और एक्टिव रीजन के अंदर ये आपका बेसिकली मॉडल था। प्लीज नोट कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है एक्टिव की इक्वेशन लिखी हुई है, और ये जो मॉडल बना हुआ है ये एक्टिव रीजन का मॉडल बना हुआ है। किस फॉर्मेट में बना हुआ है? फॉर्मेट 2 में बना हुआ है। एक्टिव की इक्वेशन और ये एक्टिव रीजन का मॉडल है, फॉर्मेट 2 के लिहाज वाला मॉडल मैंने ले लिया। अब वो बताना ये चाह रहे हैं कि इस एक्टिव रीजन के मॉडल के अंदर बेस एमिटर जंक्शन जो था वो ऑन था, ये तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और डायोड को बेस पे बना दिया गया था। और जो कलेक्टर का करंट था वो बेसिकली एक्टिव रीजन के अंदर बेस एमिटर वोल्टेज पे डिपेंडेंट था। जब ये जो करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स दिखाई गई थी, उसके अंदर VBE का टर्म नज़र आ रहा था, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि सैचुरेशन रीजन में आने से क्या होगा। देखें, ये बेस टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है। जब सैचुरेशन रीजन आएगा तो बेस और कलेक्टर के दरमियान का डायोड भी ऑन हो जाएगा और फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। तो अब ये एक्टिव रीजन के मॉडल में थोड़ी सी चेंजेस करके इसको सैचुरेशन का मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, वो ये दिखाएंगे कि बेस और कलेक्टर के दरमियान में भी जो डायोड था वो ऑन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि बेस कलेक्टर जंक्शन ऑन होगा तभी तो सैचुरेशन आएगा ना। तो अब उन्होंने क्या किया है, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल के दरमियान जो डायोड था उसको उन्होंने ऑन करा दिया है, और इसका जो करंट दिखाया है डायोड का, अब इसका करंट इन्होंने कहा है कि ये करंट बेसिकली बेस कलेक्टर वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अब ये जंक्शन जो है वो बेस और कलेक्टर के दरमियान का फॉरवर्ड वाइज है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ये जो नया स्केल करंट इसके अंदर होगा, हम इसको ISC से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी एग्जैक्ट क्या वैल्यू है हमें नहीं पता,
आप बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि एक्टिव रीजन के अंदर आईसी की जो वैल्यू थी पहले वो ये थी, आईसी इक्वल टू आई एस ई रेस टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी। जैसे ही सैचुरेशन रीजन आया, बेस से लेके कलेक्टर तक के दरमियान का डायोड ऑन हो गया, और जब वो डायोड ऑन हुआ तो अब इसके थ्रू गुजरने वाला करंट वीबीसी वोल्टेज पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। इसलिए डिपेंडेंट है कि अब ये फॉरवर्ड बाइजिंग को इंडिकेट कर रहा है ये डायोड, और इसका जो करंट है वो आई एस सी ई रेज़ टू द पावर वीबीसी ओवर वीटी है। ठीक है, ये आ गया। लेट अस अप्लाई केसीएल एट दिस पॉइंट। हम केसीएल अप्लाई करके देखते हैं इस पॉइंट पे। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये करंट भी इस नोड की तरफ आ रहा है और आईसी करंट भी इस नोड की तरफ आ रहा है। तो प्रीवियसली एक्टिव रीजन में फ्लो करने वाला आईसी, ठीक है, और अब जो नया सैचुरेशन रीजन हो जाने की वजह से नया आईसी प्रोड्यूस हो रहा है वो, ये दोनों आपस में सम हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों टुवर्ड द नोड जा रहे हैं और ये बन रहे हैं पुराने वाले आईसी के बराबर। आई एस इक्वल टू उस आईसी के बराबर जो वीबीई ओवर वीटी है। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि एक्टिव रीजन में कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है ज़्यादा और सैचुरेशन रीजन में कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है कम। हम इसी चीज़ को इक्वेशंस के थ्रू प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो दिखाया ये कि जब ये डायोड ऑन हुआ तो जो प्रीवियस आईसी था और वो जो प्रीवियस और जो नया फॉरवर्ड वाइज करंट है, ये दोनों आपस में सम अप होके डिपेंडेंट करंट वाला वीबीई बना रहे हैं। ये बेसिकली इस सर्किट का केवीएल बता रहे हैं। ये तो केवीएल की केसीएल की इक्वेशन है इस नोड के ऊपर। इससे बेसिकली मैं नेट कलेक्टर करंट निकालूं। असल कलेक्टर करंट अब होगा क्या, क्योंकि कलेक्टर करंट तो वो है ना जो बेसिकली बिल्कुल ट्रांजिस्टर के एंड पे निकल रहा है। कलेक्टर करंट क्या है, कलेक्टर करंट ये है कि वीबीई में से वो वाला आईसी करंट जो कि वीबीई पे डिपेंडेंट था उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो वाला करंट जो कि अब नई सैचुरेशन वाली सप्लाई के फॉरवर्ड बाइजिंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। मैंने क्या किया, बेस और कलेक्टर के दरमियान एक डायोड दिखाया जो कि ऑन था। क्यों ऑन हुआ है, क्योंकि अब बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो भी ऑन हो गया है। तो इसके करंट को अब हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें। फॉरवर्ड बाइजिंग करंट की इक्वेशन होती है ये डायोड के ई रेज़ टू द पावर सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई वी टी, और ये इसके स्केल करंट होता है। अब हमने जब इसकी मुनासबत से इस पॉइंट पे केसीएल लगाया तो आईसी और वीबीसी ये दोनों ऐड होके आई वीबीई वाला बना रहे थे। ये इक्वेशन आ गई। ये आईसी वो आईसी होगा जो टोटल आईसी होगा सैचुरेशन रीजन के अंदर। मैंने इसको सेपरेट आउट किया तो मुझे पता चला वीबीई वाला जो करंट का पोर्शन था उसमें से वीबीसी वाला करंट का पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बेसिकली हमारी इक्वेशन है जो हमें कुछ बता रही है। वो क्या, अगर देखें फॉरवर्ड बाइजिंग ना होती तो ये पूरा कंपोनेंट क्या होता, ये पूरा कंपोनेंट ज़ीरो होता। ठीक है, अगर बेस कलेक्टर जंक्शन में फॉरवर्ड बाइजिंग ना होती तो ये पूरा कंपोनेंट ज़ीरो होता और आईसी इसके ही बराबर होता कि वीबीई पे डिपेंडेंट है जैसे हमेशा होता था एक्टिव रीजन में। अब चूंकि सैचुरेशन रीजन आ गया है तो ये एक कंपोनेंट एडिशनली प्रोड्यूस हो रहा है जो कि जितना पहले आईसी करंट था वीबीई की वजह से उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि नया आने वाला करंट उस करंट के अगेंस्ट चल रहा है जो कि वीबीई से प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये करंट पॉजिटिव है, ये करंट नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये करंट पूरा अब अगर फॉरवर्ड बाइजिंग ना होती तब तो ये पार्ट होता ही नहीं। अब फॉरवर्ड बाइजिंग से जो करंट का कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव इन नेचर है एज कंपेयर टू जो वीबीई से प्रोड्यूस हो रहा था। दोनों एक दूसरे को काउंटरएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वीबीसी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये वाला पूरा का पूरा कंपोनेंट माइनस वाला बढ़ता जाएगा और आपके एक्चुअल पुराने आईसी को रिड्यूस कर रहा होगा क्योंकि ज़ाहिर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बहुत क्लियर सी बात है। तो इसलिए अब हमें पता ये चला कि सैचुरेशन रीजन के अंदर जो कलेक्टर का करंट होगा वो एक्टिव के करंट से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एक्टिव में तो ये करंट एग्जिस्ट कर रहा था, सैचुरेशन में इसी करंट में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि जो नया करंट प्रोड्यूस हो रहा है फॉरवर्ड बाइजिंग की वजह से वो एक्टिव वाले करंट में से जाके सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जा रहा है।
तो वी कैन ईजिली से कि सैचुरेशन रीजन में आने के बाद कलेक्टर का जो भी प्रीवियस करंट था एक्टिव के मुकाबले में, वो करंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होगा। वो कितना कम हो रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वीबीसी जो है वो कम हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें अगर इस वीबीसी को बढ़ाते चले जाएंगे अनलिमिटेड तौर पे, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर अल्टीमेटली इतना बढ़ जाएगा कि ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम ऑफ कोर्स ज़ीरो करंट पे तो बीजेटी को ऑपरेट करते नहीं हैं, तो हम वीबीसी की कोई ऐसी रीजनेबल वैल्यू चूज़ करते हैं कि ये करंट कंपोनेंट ठीक है सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा ये करंट कंपोनेंट ना हो गया हो कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के ज़ीरो आ जाए। हम इस वीबीसी की वैल्यू को नॉमिनल सेट करते हैं कि वो एक्टिव से कम किसी वैल्यू पे ऑपरेट कर रहा होगा करंट की, ज़ाहिर है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो हर हाल में करंट को कम कर ही रहा होगा, लेकिन इतना कम करंट ना कर दे कि ये जो आईसी करंट है वो आपका ज़ीरो ही हो जाए। ठीक है, ये सारी वही एक्सप्लेनेशन है जो कि पूरी लिखी हुई है। वही जो मैंने भी एक्सप्लेन किया वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम VBC को इनफैक्ट 0.5 वोल्ट की वैल्यू के ऊपर सेट करते हैं ताकि ये वाला जो कंपोनेंट है करंट का ये नॉमिनल हो, इतना ना हो कि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो हो जाएं। बस हाँ, कुछ ना कुछ VBC की वैल्यू की वजह से ये करंट थोड़ा सा जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम हो गया हो, ये इस वाले पार्ट की वैल्यू छोटी से छोटी ही हो। हम VBC को 0.5 आमतौर पे पुट करते हैं। अच्छा, तो क्या अब मैं ये कह सकती हूँ इस पूरी स्टडी के बाद कि IC ओवर IB बीटा के बराबर होता है? एक्टिव रीजन के अंदर IC बड़ा होता है, IB को मैं सपोज करूँ फिलहाल कांस्टेंट, ठीक है। एक्टिव रीजन का IC बड़ा है तो मैं कह सकती हूँ एक्टिव रीजन में बीटा बड़ा आएगा। सैचुरेशन रीजन में IC अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाता है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सैचुरेशन का जो बीटा है वो कम होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो अब हमें पता चला कि बीटा की वैल्यू जो है वो एक्टिव रीजन में ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि कलेक्टर करंट एक्टिव रीजन के अंदर ज़्यादा होता है, अज्यूमिंग दैट कि IB को हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, IB पे इतना फ़र्क नहीं होता। पता ये चला कि जब सैचुरेशन रीजन में कलेक्टर का करंट अपनी ओरिजिनल एक्टिव वाली वैल्यू के मुकाबले में कम हो जाता है, तो जाहिर है जब IC कम होगा, न्यूमरेटर कम होगा किसी भी फ्रैक्शन का, तो इसका मतलब है ये बीटा भी कम हो जाएगा। तो वही ये बता रहे हैं कि जितना हम सैचुरेशन बढ़ाते जाएंगे ट्रांजिस्टर का, क्या मतलब है, जितना VBC को आप बढ़ाते जाएंगे उतना कलेक्टर का करंट कम होता चला जाएगा और बीटा और भी कम होता चला जाएगा। यह बात पता चल रही है कि इस इक्वेशन के हिसाब से जितना हम जो है वो VBC की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, सेकंड वाला ये जो माइनस वाला फैक्टर है पूरा का पूरा इस पूरी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब्ट्रैक्ट होगा और करंट IC की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो जितनी IC की वैल्यू घटेगी उतना ही बीटा रिड्यूस होता चला जाएगा। तो द मोर द वैल्यू ऑफ VBC, द मोर सैचुरेटेड विल बी द ट्रांजिस्टर, द मोर विल बी द वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव टर्म, और फिर द लेसर विल बी द कलेक्टर करंट। तो जितना IC कम होगा उतना ही बीटा सैचुरेशन में कम होता चला जाएगा। चूँकि IC की वैल्यू को रिड्यूस करने से बीटा की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इन सैचुरेशन रीजन की बात हो रही है, यानी कि IC की वैल्यू को अपनी पसंद की वैल्यू पे कंट्रोल करा के, यानी अपनी पसंद की वैल्यू पर ला के या फोर्सेबली किसी भी वैल्यू पे ला के हम फिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, IC की वैल्यू को हम कंट्रोल करके या फोर्स करके अपनी पसंद की वैल्यू पे एडजस्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम IC की वैल्यू को कंट्रोल करके या फोर्स करके किसी भी वैल्यू पर ला सकते हैं, तो इसका मतलब है हम बीटा की वैल्यू को भी कंट्रोल करके या फोर्स करके किसी भी वैल्यू पर ला सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे IC चेंज होगा बीटा भी चेंज होगा। तो इसी वजह से सैचुरेशन रीजन में जो बीटा होता है वो ज़्यादा नहीं होता, एक्टिव रीजन बीटा की तरह हाई नहीं होता, बल्कि उसकी वैल्यू कम होती है और उसको बीटा फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह IC की वैल्यू को कंट्रोल करके फोर्स करके आप अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू पे ला सकते हैं, उसी तरह बीटा की वैल्यू को भी कंट्रोल करके फोर्स करके हम अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू पे ला सकते हैं सैचुरेशन रीजन में। Therefore, beta of saturation region is called as beta force. It has a comparatively smaller value as compared to the beta of active region. यहाँ पे बीटा बिल्कुल भी कोई गेन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता।
लास्टली एक दो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो ये कि एक्चुअल ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इस तरह का होता है कि एमिटर बीच पे बेस ने उसको सराउंड किया होता है और कलेक्टर जो है वो यहाँ पर होता है। तो इस बात की बहुत ही कम गारंटी होती है, क्योंकि देखिए एमिटर से आने वाला कोई भी चार्ज बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बेस को क्रॉस करते हुए कलेक्टर में चला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर चार्जेस का फ्लो यूजुअली डाउनवर्ड होता है। तो ये बहुत छोटा सा रीजन होता है और मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिटर से चलते हैं वो इजीली कलेक्टर में कलेक्ट हो जाते हैं जाके। दूसरी बात ये कि एमिटर और कलेक्टर इस स्ट्रक्चर, ये बेसिकली एक्चुअल स्ट्रक्चर है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखने में रियलिटी में ऐसा होता है। इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाइड दिखाया गया है, टर्मिनल्स वगैरह सही से नहीं दिखाए हैं कि मेटालिक हैं या कौन से मटेरियल के। बहरहाल तो एमिटर और कलेक्टर रीजन बज़ाहिर तो दिखाते हैं आपको वो ब्लॉक डायग्राम में कि बराबर हैं, लेकिन एमिटर और कलेक्टर रीजन का साइज़ बिल्कुल भी बराबर नहीं होता। इसी वजह से एमिटर और कलेक्टर एक दूसरे से जो है वो इंटरचेंज नहीं हो सकते। दूसरा ये कि कलेक्टर और बेस जंक्शन का एरिया काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एमिटर और बेस जंक्शन के एरिया के ना। मतलब जंक्शन किसको कह रहे हैं, जहाँ एमिटर और बेस की बाउंड्री बन रही है। इसी वजह से कलेक्टर बेस के अंदर जो स्केल करंट कलेक्टर करंट का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्केल करंट ऑफ एमिटर रीजन। बहरहाल ये एक छोटी सी डायग्राम है, बस बुक के अंदर बनी हुई थी तो आई एक्सप्लेन्ड इट। These are few practice problems. Please try them on your own and keep them with you. अच्छा, बाइजिंग इन ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर के अंदर बाइजिंग जो है वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ट्रांजिस्टर को डीसी वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं। आसान अल्फाज में डीसी सप्लाई वोल्टेज और रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन हम बीजेटी के साथ या किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि उस पर कोई वोल्टेज कलेक्टर पे अपीयर हो सके, एमिटर पे अपीयर हो सके, बेस पे अपीयर हो सके, ये पूरी चीज़ मिला के बाइजिंग अरेंजमेंट कहलाती है। ठीक है, बाइजिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लेट अस सी देम वन बाय वन। ओके, ये है वोल्टेज डिवाइडर बाइज। आई थिंक वही मैं कह रही हूँ, इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वोल्टेज डिवाइडर बाइज है, इसको तो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। दूसरा तरीका क्या है, इस तरह का सर्किट भी आप सॉल्व कर चुके हैं कि जिसमें 2 पावर सप्लाईज यूज़ हो रही हों और बेस के ऊपर जो है वो या तो रजिस्टर लगा हो या डायरेक्टली ग्राउंड भी हो सकता है। तीसरा, इस तरह का इत्तेफाक से कोई सर्किट सॉल्व करने के लिए नहीं आया, लेकिन इसकी कुछ इक्वेशंस बुक में हैं, चाहें तो देखिएगा। अदरवाइज कलेक्टर टू बेस फीडबैक का क्या मतलब है कि कलेक्टर और बेस के दरमियान जब कोई कनेक्शन कर दिया गया तो इसको कह रहे हैं कि कलेक्टर से बेस तक एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके नतीजे में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ जो करंट है, डायरेक्टली जो करंट कलेक्टर पे है वो तो आईसी कहलाएगा, ये करंट आईसी नहीं होगा। बल्कि अगर मैं इस पॉइंट पे केसीएल लगा के देखिएगा कि अगर ये करंट आईसी है और ये करंट आईबी है जो कि यहाँ जा रहा है यूं करके ट्रांजिस्टर की बेस के अंदर, क्योंकि एनपीएन का जो करंट होता है वो बेस के अंदर जाता है, तो ये वाला करंट आप खुद से देखिएगा केसीएल लगाने से ये करंट जो है वो आईई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आईसी भी आ रहा है और आईबी दोनों अवे फ्रॉम द नोड जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो करंट जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, एमिटर करंट के बराबर आ रहा होगा। बहरहाल हमें इस वक्त इनकी डिटेल्स में नहीं जाना है, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक दफ़ा दिखा दूँ कि ये सर्किट्स इस तरह के होते हैं, करेक्टर टू बेस फीडबैक बायस और बाइजिंग यूजिंग अ कांस्टेंट करंट सोर्स। हर एक ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं इनके अपने एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। एंड एज एन इंजीनियर कभी आपको जब सर्किट डिज़ाइनिंग कहा जाए तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग करनी है। फ़िलहाल हम इस वक्त इस डिटेल में नहीं जाएंगे इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बट सर्किट आपने देख लिया, दैट इज़ इनफ।